So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is going to be a super interesting reading because मुझे ऐसा लगता है कि a lot of you are interested in knowing कि what your special person thinks about you. This special person could be a friend, could be someone whom you admire, could be a very good friend. मेरे को friend वाली बहुत vibe आ रही है. Intuitively I am getting कि some of you crush and some of you think about your friend. So this could be either a crush or a friend whomsoever you are willing to know about what this person thinks about me. I'm going to tell you using tarot. So here are the two piles. कौन सी दो पाइल है? तो two piles are ये पेन ले रहे हैं, एक पाइल and taking this pouch. Intuitively choose the pile जो तुम्हें अट्रैक्ट करे, ठीक है. Pause the video for a second and whichever pile grabs your attention उसको choose करना. And this is pile 1, this is pile 2. And secondly I would like to say if you are getting confused now, so make chits. Write 1, 2 and 3 एक additional chit बना लेना जिससे ये पता चल सके 3 is a non chit, ठीक है. That means you don't have any pile in this video. कभी कभी ऐसा होता है. Usually the video resonates with maximum of you, but sometimes हो जाता है कि the video is not for you. तो वो भी possibility रखना कि नन पाइल भी बना लेना एक एंड डिवाइन को माइंड में रख के पाइल्स को लाइक चिप्स को शफल करना. जोन सी पाइल आएगी इट वुड बी योर्स एंड डू मेडिटेट. नहीं तो दोज ऑफ यू हु कैन चूज इंट्यूटिवली कैन मेडिटेट. Pause कर लो वीडियो and then see. So pile 1. So this is a very special pen. This person could be very special to you, and I sense कि this you think that this person is very pure-hearted. I'm getting this, and this person could be traditional as well. I didn't why did I say this person could be either of you, ठीक है. हो सकता है this person thinks you are traditional or you think that this person is traditional. Could be either of you, ठीक है. And वैसे personally I feel जो भी whatever happens is a part of reading. So I personally do feel that it is this person's feelings, it is your feelings for this person, like that I am getting. Red color could be red or red and yellow color could be your favorite or this person's like red, yellow and white. I am getting this. Could be आपका favorite हो सकता है. Could be your person would be fond of this color or something, ठीक है. तो now we are going to use tarot. I am using this deck. पहले विल सी कि आप क्या फील कर रहे हो. इट वुड बी अ ब्रीफ रीडिंग, ठीक है, एक छोटा स्प्रेड एंड वी गोइंग टू चेक व्हाट यू आर फीलिंग करेंटली, ठीक है. करेंटली पाइल 1 जो मेरे व्यूअर्स हैं व्हाट आर दे फीलिंग, ठीक है. इफ दिस रेजोनेट्स विद यू, जो भी आई एम टेलिंग यू अबाउट योरसेल्फ, देन सी अकॉर्डिंगली लाइक इफ रीडिंग रेजोनेटेड 90%, देन 90% आपकी पार्टनर की रीडिंग भी द पर्सन यू आर सीइंग, पता नहीं डिवाइडेड है सिर्फ पार्टनर. तो मेरे को बार बार ये इंट्यूजन आई थी कि जो भी व्यूअर्स हैं वो भी कुड बी ईदर लुकिंग फॉर क्रश और कुड बी लुकिंग फॉर ईदर योर फ्रेंड. यू वांट टू नो कि व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स फीलिंग फॉर यू, लाइक हाउ योर फ्रेंड्स सी यू कुड बी ईदर. तो मुझे बार बार ये फ्रेंड के लिए आ रहा है और एक क्रश के लिए आ रहा है. So that's why I said in the beginning as well. So let's see what this pile 1 is feeling right now. Pile 1 के जो viewers है वो इस समय क्या feel कर रहे हैं pile 1 के viewers. So strength in reverse. मुझे सेंस हो रही है कि आपकी जो ये जो स्ट्रेंथ इन वर्स है ना, मुझे ये चीज़ लग रही है कि वर्क प्लेस पॉलिटिक्स बहुत है, ठीक है. आपकी वर्क प्लेस पॉलिटिक्स आर गेटिंग एंड I think you are losing control of your emotions and there is someone special in your life. I am getting this, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा, but
आई एम गेटिंग दिस समवन स्पेशल, आपको लगता है कि दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स यू वेरी वेल, देयर कुड बी समवन, कुड बी अ फ्रेंड, कुड बी दिस पर्सन ओनली जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। ये लव इंटरेस्ट के लिए भी हो सकती है। दिस रीडिंग कुड बी फॉर एनी वन, लाइक सम यू वॉन्ट टू नो कि वॉट योर स्पेशल पर्सन थिंग्स अबाउट इट, कुड बी फॉर लव इंटरेस्ट, कुड बी फॉर पर्सन यू एडमायर, ठीक है। एंड वर्क प्लेस पॉलिटिक्स आई एम गेटिंग, किसी चीज़ से यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट एंड यू आर नॉट गेटिंग टू नो कि आप कहीं जगह पे ऐसे रिएक्ट कर रहे हो वे यू डोंट विश टू रिएक्ट। लाइक पर्सनली आई फील कि यू कुड बी अ वेरी, आपका बहुत कंट्रोल्ड नेचर है, लाइक आपको पता है वेयर वॉट से, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिवली स्टेप्स लेते हो एंड यू नो वॉट टू रिएक्ट इन वॉट सिचुएशन, लाइक वॉट किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना है, यू आर अवेयर, लाइक यू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ दिस, लाइक आपका लॉजिकल स्किल्स इज़ वेरी शार्प, आपको पता है कि कहाँ क्या, बट अभी करंटली आपकी सिचुएशन ऐसी है, मेंटल पीस आई एम नॉट एबल टू सी, मेंटल पीस नहीं है, इमोशनल कन्फ्लिक्ट आई एम गेटिंग, इमोशनली यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस एंड आई एम गेटिंग, यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड, ठीक है, ट्रिगर्ड वाइब्स आ रही है कि आई फील लाइक यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड, ठीक है। एंड लाइक यू आर, आप जिस लाइक आपका नॉर्मल नेचर होगा कि आप बहुत पीसफुली सॉर्ट करते हो तो आप रिएक्ट कर रहे हो, इट्स लाइक यू आर नॉट बिहेविंग इन योर नॉर्मल बिहेवियर, लाइक आप नॉर्मल रूटीन में बिहेव नहीं कर रहे, आप थोड़े एग्रेसिव हो जा रहे हो, थोड़े रूड हो जा रहे हो एंड यू डोंट इंटेंड टू, बट आपका इमोशनल कन्फ्लिक्ट इज मेकिंग यू दिस वे एंड आई फील कि दिस कुछ ये जो स्पेशल पर्सन है इसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो सकता है, दिस सम स्पेशल पर्सन जो जिसके आप बहुत सुनते हो, ठीक है, एंड दिस पर्सन यू थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझता है, कुड बी अ मदर, पता नहीं क्यों बोला, कुड बी अ मदर, कुड बी दिस फ्रेंड जिसके लिए देखो वही जो मैंने बोला, नहीं तो आई फील कि बहुत ऑप्टिमिज्म और ग्रीनरी, आपको नेचर से बहुत प्यार हो सकता है, ठीक है, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ नेचर, पार्क वगैरह जाना अच्छा लगता है एंड यू आर फॉन्ड ऑफ गोइंग टू लाइक फॉरेस्ट, ट्रेकिंग के लिए गए हो, कुड बी वेरी स्पेसिफिक फॉर समवन आई एम गेटिंग दिस, I see you losing track of your emotions, that's what I mean to say. Let's see file 1 currently क्या है, 6 of Pentacles in inverse. आई फील जो मैंने आपको भी बात बोली, यू आर नॉट एबल टू रियलाइज आपको कहाँ क्या कितना बोलना है, वो चीज़ अगेन आई एम एबल टू सी। आपका जनरल नेचर इज़ वेरी बैलेंस्ड, ठीक है, बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी आई एम गेटिंग, बट अभी थोड़ा इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। फंड्स के मामले में भी आई सी कि या तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो या बिल्कुल खर्चा नहीं कर रहे हो, दैट वे स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, ओवर स्पेंडिंग हो सकती है, ठीक है, एंड नहीं तो बिल्कुल कोई स्पेंडिंग नहीं है, ठीक है, एंड हो सकता है होम टाउन में ना रहते हो, कुड बी वेरी स्पेसिफिक फॉर समवन, ठीक है, यू बिलीव इन शेयरिंग एंड केयरिंग, बट अभी जनरल नेचर ऐसी कि नहीं हो पा रहा है शेयरिंग एंड केयरिंग, आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, वही आई एम गेटिंग दिस थिंग अगेन एंड कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ भी लगती है कि यूनिवर्स हैज़, दिस कुड बी स्पेसिफिक फॉर समवन, यूनिवर्स हैज़ डन अनजस्टिस टू यू, समथिंग दैट इज़ नॉट फेयर, ठीक है, you feel things are not in your favor, like some of you could be feeling I have done so much good for society in general, या I have done so much good, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ गलत क्यों हुआ, ये क्यों वाला पार्ट आई सी कि यू हैव इन लाइफ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वो चीज़ आई कैन सी, सो इसलिए भी इम्बैलेंस आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी यार अगर मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो आई वॉन्ट टू अभी किसी के साथ भी अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माइंडसेट ऐसा हो जाता है, सिचुएशंस ऐसी होती है कि वी फील लाइक कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो अभी मैं भी किसी के साथ अच्छा नहीं करूँगा, वो माइंडसेट ऐसा हो जाता है कभी कभी, सो दैट इज़ फेयर इनफ, आई मतलब बट आई फील कि लोग आपको बहुत जज कर रहे हैं इस चीज़ पे, ठीक है, लोगों को लग रहा है कि यार अचानक ही नहीं क्या हो गया, पीपल अराउंड आई एम गेटिंग दिस, पीपल अराउंड यू आर जजिंग यू, लाइक फॉर दिस दे आर जजिंग यू कि ये बंदा तो बहुत करता था, लाइक उनको कहीं ना कहीं आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, कुड बी फैमिली मेम्बर्स, कुड बी कुलीग्स जो आपके बहुत क्लोज है, आई एम गेटिंग दीज पीपल आर वेरी मच इनटू लाइक दे आर फीलिंग सेक्लूडेड क्यों बोला, एक्सक्लूडेड बोलना चाहिए था, बट आई फील कि
पीपल अराउंड यू आर फीलिंग, मतलब उनको लग रहा है कि वो बिल्कुल भी दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ यू, लाइक उनकी एक्सपेक्टेशंस आप मीट नहीं कर पा रहे हो. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. एंड दीज पीपल अराउंड यू आर फीलिंग वेरी लोनली. दे आर नॉट फीलिंग कि उन्हें आपसे ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. खुद भी आपको बोला भी हो कुछ लोगों ने, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि आसपास के पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड. एंड वो दिस इज ऑल बिकॉज दे डोंट नो अबाउट वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, या जो भी आपके पास में हुआ. पीपल आर नॉट अवेयर. ठीक है, तो वो उस बेस पे जज करे कि ये तो बहुत अच्छा करता था, अब नहीं कर रहा, ये भी बदल गया. लाइक इट्स लाइक सब बदल जाते हैं. आई एम गेटिंग दिस क्योंकि इससे ये उम्मीद नहीं थी एंड इसने ऐसे देखा. सम वे आई एम गेटिंग दिस. एंड सेकेंडली आई एम यूनिवर्स, आई एम गेटिंग दिस कि यू कैन सेटिस्फाई एवरीवन. ठीक है, तो अभी आई वुड सजेस्ट कि पहले आप अपनी मेंटल पीस से. ठीक है, जो भी आप कर रहे हो अपनी मेंटल पीस को स्टेबल करना बहुत जरूरी है. दिस इज व्हाट गाइडेंस आई एम गेटिंग. यू हैव टू गेट थ्रू योर वट एवर यू आर गोइंग थ्रू. टेक इट आउट. ठीक है, इमोशनल बर्डन जो भी है टेक इट आउट. ठीक है, कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग यू कुड बी वेरी मच बर्डन विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बहुत ज़्यादा काम, बर्डन. ठीक है, अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे, तो टेक दैट टाइम आउट. ठीक है, एक चीज़, हाँ, मैजिशियन आया है, तो यू आर अ पर्सन जो भी अपने वर्ल्ड में चाहो मैनिफेस्ट करो. या देखो ये एंड ऑफ द डेक में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया और फिर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की कुछ छुपा भी रहे हो सकते हैं. ठीक है, कुछ हाँ हो सकता है. आई एम गेटिंग दिस बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकता है. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बोला है तो एवरीथिंग हैपेंस एज अ पार्ट ऑफ रीडिंग. 7 ऑफ वैंड्स आया. ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स इज लाइक यू आर बीइंग वेरी मच डिफेंसिव. ठीक है, बहुत लोगों को आने नहीं दे रहे हो. ठीक है, अपने इमोशनल जोन में यू डोंट वांट पीपल. बहुत सारे हिडन एनिमीज में. ठीक है, और मुझे लग रहा है कि जो आपके क्लोज लोग हैं ना, रिलेटिव या जो भी है, जो जिनको लग रहा है, खुद भी पेरेंट्स एज वेल. कभी कभी पेरेंट्स को भी हमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है. सो ये लोग मिसगाइड करते हैं. ठीक है, मेरे को किसी के पेरेंट्स में ये नज़र आ रहा है कि आपके पेरेंट्स को कुछ लोग ना लाइक गलत बोल रहे हैं आपके बारे में, तो वो देखते हैं ना थोड़ा कि मिसगाइड कर रहे हैं कि लाइक आपका बच्चा बदल गया. दैट वे आई एम गेटिंग फॉर समवन वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, तो वो देखे ना, यू आर वेरी डिफेंसिव, यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड्स. ठीक है, आपने आपको डिफेंड भी बहुत करते हो. ठीक है, देयर कुड बी अ फ्रेंड जो आपको बहुत समझता हो. ठीक है, वट एवर आई सेड. अभी यू आर करेंटली गोइंग, आपको लग रहा है कोई होप नहीं है, बट होप इज. ठीक है, होप है बट आप नहीं देख पा रहे. ठीक है, ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है. ठीक है, तब भी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है. ठीक है, एनर्जी कुड बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा बिकॉज रीडिंग इज जनरल. ठीक है, अभी मैजिशियन का मतलब ये है कि करियर वाइज और लव लाइफ वाइज जो भी आप चाहो अपने वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने वर्ल्ड में ला सकते हो. ठीक है, यू हैव द पावर एंड कैपेबिलिटी टू गेट वट एवर यू डिज़ायर. ठीक है, किसी को रोज़ फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं. ठीक है, अब बहुत ज़्यादा मेरे को ये भी आ रहा है कि आप ये जो भी पर्सन है, आप इस पर्सन के बारे में बहुत सोच भी रहे. ठीक है, यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन. आपको थोड़ा ऑब्सेशन भी हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे आया. ऑब्सेशन भी हो सकता है इस पर्सन के लिए. ठीक है, बट इन जनरल आई सी यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी. ठीक है, आपका कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ रहे हैं किसी के लिए. लॉजिकल स्किल्स भी बहुत शार्प है एंड बहुत फोकस्ड हो. लाइक एक बार कोई चीज़ ठान ली तो कंप्लीट करनी है. दैट वे आपका नेचर आ रहा है मुझे. बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी है. ठीक है, वर्क ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड भी मुझे आ रहा है बहुत. ठीक है, अभी विल चेक फॉर योर पार्टनर. ठीक है, जो भी ये संबंध स्पेशल है. ठीक है, वी आर गोइंग टू चेक फॉर दिस संबंध स्पेशल. ये भी स्पेशल टाइप, ये मिनी डेक है. संबंध स्पेशल के लिए कोई छोटा डेक यूज करना. ठीक है, अब वी आर गोइंग टू चेक फॉर योर संबंध स्पेशल केस. थोड़ा किसी को भूलने की बीमारी हो सकती है. लाइक संबंध थोड़ा ऐसे कि बीच बीच में भूल जाते हो, ऐसा लगता है आपको, या कुछ ऐसे. कुड बी यू, कुड बी योर पर्सन. ठीक है, अभी वी आर गोइंग टू चेक व्हाट डज पाइल वंस पर्सन, व्हाट डज पाइल वंस स्पेशल पर्सन थिंक अबाउट दैट. यानी तो समझ नहीं गया. व्हाट डज पाइल वंस स्पेशल पर्सन थिंक अबाउट दैट. व्हाट डज पाइल वंस स्पेशल पर्सन थिंक अबाउट दैट. Nine of Pentacles in reverse. This
person sees you as someone, this person को लग रहा है कि you're not talking to a lot of people, ठीक है, and this person sees you, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है this person को, and someone special, इन्होंने आपको हर बार रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में देखा हो सकता है आप बहुत एक हाई पोजीशन पे हो सकते हो या अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हो, कुड बी टीम लीडर, कुड बी ऑफिसर, सीईओ, कुछ ऐसा पोजीशन हो सकती है, बॉस लेवल पोजीशन है मेरे। तो दिस पर्सन हैज सीन यू रिलैक्स्ड एंड आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए मुझे ड्रिंकिंग भी आ रही है, कुड बी आप ड्रिंकिंग करते हो, ठीक है। नेचर लवर अगेन मुझे आ रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज लाइक थिंग्स लाइक, हाँ, दिस पर्सन ऑल्सो थिंग्स कि आपकी ओवर स्पेंडिंग की आदत है, जो मैंने आपको बोला था कि आप अभी ओवर स्पेंड कर रहे हो सकते हो, तो वो चीज़ मुझे आई थी। दिस पर्सन ऑल्सो थिंग्स दैट आपको ओवर स्पेंडिंग की आदत है एंड यू नॉट टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल। दिस पर्सन वॉन्ट्स, थोड़ा बहुत आई एम गेटिंग इग्नोर्ड फीलिंग। दिस पर्सन फील्स दैट यू हैव इग्नोर्ड दिस पर्सन इन सम सॉर्ट वे, लाइक सम सॉर्ट ऑफ सम वे यू हैव इग्नोर्ड दिस पर्सन। सो एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग कि उनकी कुछ इंपॉर्टेंस है भी आपकी लाइफ में या नहीं। दिस आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस समवन स्पेशल, ठीक है। तो व्हाट डज फाइल वंस पर्सन थिंक अबाउट स्पेशल पर्सन, मून इन वर्स। सो दिस पर्सन को लगता है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, ठीक है, एंड you don't express yourself. This person wants you to be expressive, ठीक है। This person wants you कि आप बहुत ज़्यादा इनसे अपने सीक्रेट शेयर करो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट शेयर करते हो। I see genuine love, like this person feels like you have very true emotions, you are very emotional. This person is very well aware. King of Cups का कार्ड अपने आप निकल के आया, ठीक है। तो this person thinks कि you are very emotional, ठीक है, बहुत इमोशनल हो, बहुत होल्ड बैक करते हो। दिस पर्सन इज अवेयर, ठीक है, आपकी बहुत होल्ड बैक एनर्जी है, ठीक है। एंड उस चीज़ से इनको ऑब्जेक्शन भी है कि वाई डोंट यू शो थिंग्स फॉर व्हाट दे आर, यू डोंट शो थिंग्स फॉर एग्जैक्टली व्हाट दे आर, यू हाइड अ लॉट ऑफ इमोशंस, ठीक है। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप अपनी इनको हिडन साइड दिखाओ, लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू बी मोर एक्सप्रेसिव, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। एंड अगर आप एक्सप्रेसिव हुए हो इस पर्सन के साथ, लाइक यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी वेल विद, like you have very good give and take with this person, then also this person thinks कि अभी और अच्छे से पता चले, like this person is not able to, like ये person आपको जज नहीं कर पा रहे, like you are very mysterious and आप बहुत हो सकते कैलकुलेटिव बताते हो सकता है बहुत सोच समझ के बताते हो सकता है ऊपर ऊपर की बात बताते हो। दिस कुड बी योर नेचर, ठीक है। यस, AC ऑन करने गई थी, कुछ भी किसी को बहुत गर्मी लग रही हो या कुछ भी स्पेसिफिक। अभी आई टोल्ड यू दिस पर्सन सीज यू एज समवन वेरी इमोशनल, इन्हें दिस पर्सन इज़ वेरी वेल अवेयर कि यू आर वेरी इमोशनल, ठीक है। बट इनको इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम है कि आप इफ़ यू आर टेलिंग, इफ़ यू आर शेयरिंग योर लाइक डे टू डे एक्सपीरियंसेस विद दिस पर्सन, इस पर्सन को लग रहा है बहुत कैलकुलेटिव बताते हो, यू डोंट टेल एग्जैक्टली, आप बहुत कुछ छुपाते हो। तो दिस पर्सन फील्स कि यू आर होल्डिंग बैक अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, लॉट ऑफ इमोशंस एंड अगर बात इतनी सी है, अगर बात इतनी सी है तो यू टेल दिस पर्सन इतना सा, दैट वे दिस बहुत कंसोलिडेटेड, बहुत कम बताते हो। तो दिस पर्सन वांट्स कि और अच्छा गिव एंड टेक हो, ठीक है, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने, ये आपके साथ आगे चाहती है एंड चाहता है या चाहती है, कुड बी ईदर वेज। एंड इनको लगता है कि यू आर वेरी मैच्योर पर्सन, ठीक है। ये आपको हस्बैंड वाइफ मटीरियल भी देख सकते हैं या देख सकती हैं। इनको आपकी मिस्टीरियस साइड बहुत लगती है, लाइक दिस पर्सन फाइंड्स यू वेरी मिस्टीरियस, दे डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट, तो वो चीज़ है। एंड दिस पर्सन कुड बी कीपिंग सीक्रेट चेक्स ऑन यू, स्टॉकिंग बहुत आ रहा है, ठीक है, स्टॉकिंग हो सकती है, ठीक है। एंड people, you are a very emotional person and this person is very well aware कि आपके आसपास के जो लोग हैं, you are very possessive about them, ठीक है। this person is aware and you don't let people easily into your emotional side, ठीक
ठीक है, मेरे को ये किसी के लिए आया है, मैक्सिमम लोगों के लिए आया है वैसे तो ये। एंड अभी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड फाइनेंसेस पर बहुत फोकस कर रहे हो सकते हो, ठीक है, अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस करते हो, ठीक है, यू गेट इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, ताकि इमोशंस पे ध्यान ना जाए। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। और देखते हैं बिजनेस में आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि यू आर इनटू टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क, ठीक है, कोई सिचुएशन हो, कोई बिजनेस हो, आप रिस्क लेने में बहुत बिलीव करते हो कि एडवेंचर्स पसंद है आपको। आई एम गेटिंग दिस, एडवेंचर्स पसंद है, एंड दिस पर्सन लाइक्स दिस थिंग अबाउट यू कि यू लाइक एडवेंचर्स, ठीक है। एंड आपने इस पर्सन को बहुत शॉक करा है, अपने एडवेंचर टेकिंग एटीट्यूड से आपने बहुत शॉक करा है। आपको रिस्क टेकिंग, एडवेंचर टेकिंग, हर सिचुएशन में टेक अ रिस्क। एडवेंचर्स आ रहा है किसी के लिए, लाइक पता नहीं है, किसी के लिए बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है, लाइक इफ़ यू आर इन टू शेयर मार्केट, तो जैसे वी से कि कॉमर्स में वी से कि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं बहुत रिस्क टेकिंग शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि कोई कंपनी इज़ लाइक अच्छा नहीं जा रही है, बट आपको अंदर से इंट्यूटिवली फील होता है कि यार कंपनी वुड ग्रो इन फ्यूचर या इसका कोई स्कोप हो सकता है, तो आप उसका रिस्क लोगे, अपने फंड्स आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे इनटू इक्विटी शेयर्स। बिकॉज इक्विटी शेयर्स इतना स्पेसिफिक इसलिए, पता नहीं क्यों बिजनेस सिचुएशन स्ट्राइक हुई मुझे अचानक से, किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। अगेन तो ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना इज़ वेरी रिस्की। एक बार आप इन्वेस्ट करते हो तो वो अगर लाइक इफ़ द कंपनी इज़ नॉट गोइंग इज़ नॉट इन अ बेटर पोजीशन देन यू मे एंड अप लूजिंग योर मनी। तो आप सबको बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, दिस पर्सन लाइक्स कि आप बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो, साथ में आपका रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है, ठीक है। सेकेंडली यू कुड बी कन्फ्यूज बिटवीन टू चॉइसेस, ठीक है। अभी this person sees you confused, ठीक है, and this person is as well confused क्योंकि this person is wondering कि अब क्या होगा next। very much curiosity मुझे नज़र आ रही है आप में, आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखो इन बैक ऑफ द डेक क्या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली पावर कपल हो। पावर कपल का मतलब ये हो सकता है कि आपके पर्सपेक्टिव्स बहुत मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लगता हो कि ये पता नहीं किसी ये आया है स्पेसिफिक। ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि रीडिंग मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि दिस रीडिंग इज़ वॉच्ड बाय, आप अपने लवर के लिए देख रहे हो, क्रश के लिए देख रहे हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि दिस पर्सन, यू फील दैट दिस पर्सन इज़ केपेबल, यू आर लाइक आप इनको एज हस्बैंड वाइफ मटेरियल देखते हो एंड यू सी मैरिज विद दिस पर्सन एंड दिस पर्सन ऑल्सो सीज मैरिज विद यू, लाइक इन्हें लगता है कि कुछ रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। दिस पर्सन फील्स लाइक यू आर अ वेरी कट थ्रोट पर्सन, ठीक है। कट थ्रोट पर्सन मुझे ये वाइब आ रही है, ठीक है। एंड अभी दिस पर्सन इज इन वेरी डीप थॉट कि व्हाट वुड यू डू, ठीक है। मिस्टीरियस बहुत समझता है, बहुत मिस्टीरियस। यू कुड बी हैविंग सम साइकिक ड्रीम्स एज वेल, ठीक है। बहुत इंट्यूजन मुझे स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रही है, ठीक है। इधर यू आर योर पर्सन आपकी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। दिस पर्सन थिंक्स, हो सकता है आपको कुछ मिस्टीरियस ड्रीम्स भी आते हो अजीब से, तो एंड कुछ लोगों को मून देखना बहुत पसंद हो रात को, या दिस पर्सन कुड, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के ये जो पर्सन है ना, ये मून में आपको देखता है, लाइक रात में दिस पर्सन इज हैविंग हैबिट ऑफ लुकिंग एट मून। कुछ लोगों को मून बहुत पसंद होता है देखना, तो ये भी मुझे आ रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत, पता नहीं रिलेशनशिप फिर क्यों बोला बहुत सारे लवर्स या क्रश के व्यूअर्स हो सकते हैं, तो इसलिए बोला शायद। बहुत मिस्ट्री है, ठीक है, कन्फ्यूजन है, नेक्स्ट क्या है यू डोंट नो, ठीक है, वो चीज़ आ रही है, ठीक है। और देखते हैं अभी आप कुछ टाइम पहले ऐसे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे फोकस कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इन वर्स आया है, तो ये पास्ट एनर्जी लग रही है कि आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पर फिर मून आया है, तो बहुत मिस्टीरियस एनर्जीज।
अगेन दिस पर्सन कंसिडर्स यू एज स्टार, ठीक है, एंड दिस पर्सन ऑल्सो, इनमें मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, ठीक है, मुझे लग रहा है दिस पर्सन डजंट हैव एनी कॉन्फिडेंस। जब भी आप इनके आसपास होते हो कुछ बोल नहीं पाते या इन्हें समझ नहीं आता, या जो बोलना चाहते हैं उसकी उल्टा बोल देते हैं, ये जो एग्जैक्टली बोलना चाहते हैं वो चीज़ नहीं बोल पाते, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग थ्रू। एंड सेकेंडली अभी आप थोड़े रेस्टिंग पोजिशन में हो सकते हो, लाइक नॉट पास्ट में आप ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से बात ना कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ इस पर्सन को सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम इस बात से कि इन्हें आपकी तरफ से रिक्वायर्ड अटेंशन नहीं मिल रही। इस प्रॉब्लम को इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से कि इन्हें आप अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो। लाइक हो सकता है कि आप इनकी लाइफ में बहुत स्पेशल हो, ठीक है, आपको आइडिया नहीं है बट आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, बट और आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो इनको लग रहा है थोड़ा सा, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग बार बार, ठीक है। तो आप बहुत वर्क ओरिएंटेड लग रहे हो मुझे, ठीक है, बहुत वर्क ओरिएंटेड, और जब तक आप अपने लाइक आपको जब तक नहीं लगता, सेटिस्फैक्शन नहीं होता, आप अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होते, आप नहीं छोड़ते उस काम को, ठीक है, वो क्वालिटी दिस पर्सन एडमायर्स अबाउट यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर भी, उसमें इनवर्स आया था। दिस पर्सन थिंक्स यू आर वेरी जनरस, आप पुअर लोगों को बहुत डोनेट करते हो, ठीक है, सोशल वर्कर हो सकते हो, किसी के लिए आया है, ठीक है, बुक्स डोनेट करते हो या अभी रिसेंटली सेंड करी हो, कुछ ऐसा है। दिस पर्सन थिंक्स कि अभी ओवर स्पेंडिंग है, वही चीज़ है। एट द सेम टाइम दिस पर्सन फील्स कि आपको पता है कि आपको फाइनेंसेस को कितना कंट्रोल में रखना है, कैसे करना है, आपकी साउंड डिसीजन मेकिंग दिस पर्सन को पसंद है। लाइक इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी मैटर आई एम गेटिंग कि यू हैव वेरी साउंड डिसीजन मेकिंग, कि आपको पता है कि कहाँ स्पेंडिंग करनी है। वैसे यू लाइक स्पेंडिंग ओवर स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है, ये नेचर हो सकता है आपका कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग करते हो अपने आप पे, तो बट दिस पर्सन लाइक्स कि आपका मनी रिलेटेड आपका डिसीजंस बहुत एक्यूरेट होते हैं, लाइक मनी की कहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, उस चीज़ को लेकर आई एम गेटिंग। एंड बहुत लोग आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, एंड दिस पर्सन ये चीज़ ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वो करती है, इनको बहुत इनसिक्योरिटी है, ठीक है। अगर इफ़ इट्स नॉट अ लव रिलेशनशिप तो बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, इनको आपको खोने की बहुत इनसिक्योरिटी है। जब ये देखती हैं या देखते हैं, a lot of people have a lot of expectations from you. You are someone who is like बहुत माना जाता है या समथिंग, यू कुड बी इन अथॉरिटेटिव पोजीशन, बहुत सुनी जाती है आपकी, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं आसपास के लोगों के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ उन्हें लगता है कि यार ये दिस पर्सन इज़ वेरी स्पेशल, ठीक है, दिस पर्सन योर पर्सन डजंट वांट टू लूज यू, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। तो अगर ये लव रिलेशनशिप नहीं है तो बन जाएगा। या देखो यार 10 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, इनके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो ये अपना इमोशनल जो भी वो है वो आप में देखती है, लाइक इमोशनल फुलफिलमेंट आपके साथ बहुत देखती है। लास्ट में 10 ऑफ कप्स आया और एस ऑफ पेंटिकल्स आया विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों कार्ड्स आप देखो, मैंने बोला था ना ये आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल समझती है, कंफर्मेशन है कि दिस पर्सन थिंक्स कि आपका इनके साथ कुछ हो सकता है, लाइक फ्यूचर बहुत ब्राइट है इनके साथ, ठीक है, एंड दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स कि आप आओ फास्ट, बट आप बहुत स्लो मूवमेंट, आप बहुत कैलकुलेटेड स्टेप्स लेते हो, उस चीज़ से इन्हें बहुत प्रॉब्लम भी है। एट द सेम टाइम ये अप्रिशिएट भी करते हैं, बट इन्हें लगता है कि रिलेशनशिप या जो भी है आपके बीच में वो जल्दी स्टार्ट हो। अगर इफ आई एम सेंसिंग दिस इज़ नॉट अ रिलेशनशिप, ठीक है, दिस कुड बी अ क्रश टाइप सिचुएशन या बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, जो दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग कि यू हैव अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, ठीक है, ये चाहती है कि आपका इनके साथ रिलेशनशिप हो, ये चाहती है, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहती है ये। वैसे मैक्सिमम लोगों के लिए आई एम नॉट गेटिंग दिस एज अ रिलेशनशिप, आई एम गेटिंग दिस एज समथिंग लाइक क्रश टाइप सिचुएशन ज़्यादा, ठीक है, क्रश टाइप सिचुएशन ज़्यादा आ रही है, और बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है कि इफ़ यू बोथ टॉक ना तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बैठती है आपकी, ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, एंड एक दूसरे के साथ वाइब बहुत अच्छी मैच होती है, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। और देखते हैं, एट टाइम्स आप रूड हो जाते हो तो इनको थोड़ा लगता है, इनको आपका एटीट्यूड रूड लगता है, वो इग्नोर्ड वाली बात आ रही है कि इनको लगता है कि इग्नोर्ड में शी फील्स लाइक
बहुत रूड एटीट्यूड लगता है, ठीक है। थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो। दिस पर्सन थिंक्स दैट यू शुड बी थोड़ा एक्सप्रेसिव अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपसे बात करके, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस। एंड कभी भी मेरे को लगता है कि जब भी आपको ज़रूरत होगी ना, इनकी ये जो भी पर्सन है, ये हर बार आपके लिए स्टैंड लेंगी। हो सकता है लेती भी हूँ, बट अभी आई एम गेटिंग दिस पर्सन लाइक टेकिंग स्टैंड फॉर यू। ये आपके साथ बहुत चाहती है, लाइक 18+ थॉट्स भी हो सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अभी ये मुझे लग रहा है ये अभी रिलेशनशिप नहीं है, बट फ्यूचर में जाकर बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है। अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बैठेगी, ठीक है। बट अभी दिस पर्सन वांट्स कि आप बहुत एक्सप्रेसिव हो। जब तक आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। दैट्स वॉट आई एम गेटिंग, ठीक है। अब एक बार मैंने एक डेक निकाला था, शायद नहीं निकाला, एक बार थोड़ा सा और देख, ये वाला डेक से देखते हैं। चलो, देखो ये मेरा हैंडमेड डेक है, ठीक है। इस पर चेक करते हैं कि ये पर्सन क्या फील करती है, ठीक है। पाइल 1 की पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं, ठीक है। पाइल 1 की पर्सन लर्निंग लेसन्स, बिकमिंग अ बेटर पर्सन। सो हो सकता है इन्होंने, आपने इनसे बहुत कुछ सीखा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। ये आपसे बहुत कुछ लर्न करती है, ये आपको अपना एज अ रोल मॉडल लेती हो, ठीक है। आपसे, आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ एक बेटर पर्सन बनी है, ठीक है। आपने इन पर्सन को चेंज किया है या इन्होंने आपको चेंज किया हो सकता है, कुड बी ईदर वेज, ठीक है। पाइल 1 का पर्सन फिर से कार्ड आया, चेंजिंग पर्सन, चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स, मेकिंग अ बेटर पर्सन। तो वही जो चीज़ मैंने आपको बोली थी, चेंजिंग पर्सन, चेंजिंग पर्सपेक्टिव, मेकिंग अ बेटर पर्सन। तो आपने डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत चेंज किया है, या आप खुद बहुत चेंज हुए, बट मुझे इस पर्सन ये लग रहा है कि ये आपके साथ रहकर बहुत चेंज हुआ है, ठीक है। लेट्स सी मोर, व्हाट डज पाइल 1 पर्सन थिंक अबाउट देम। इन्हें आपसे, देखो फिर से आ गया यार, कितनी बार आएगा। आपने इस पर्सन को कितना बदला है। चेंजिंग पर्सन, चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स, मेकिंग अ बेटर पर्सन। आप में, मेरे को लग रहा है बहुत मेच्योरिटी है, एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी, एंड वो मेच्योरिटी इस पर्सन की अटेंशन बहुत ग्रैब करती है, ठीक है। तो दिस पर्सन इज वेरी मच इनटू यू, लाइक ये बहुत दिल से एडमायर कर रही है कि आपके साथ कुछ हो, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन सीज अ होल 10 विद यू, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो बर्डन, हैवी लोड, टायर्ड, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो दिस पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत सारा हैवी लोड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एट द सेम टाइम इन्हें अच्छा भी लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हो, बट इन्हें ये भी नहीं अच्छा लगता कि आप इन पर अटेंशन नहीं दे रहे हो और टू मच इन टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। ये थोड़ा चाहती है कि आप अपने ऊपर सेल्फ केयर भी करो, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स दिस कि आप सेल्फ केयर करो, अपने आप पे भी थोड़ा फोकस करो, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना करो, ठीक है। और थोड़ा इन पे भी फोकस करो। आई एम जस्ट अ लीडर। अरे यार कितनी बार आएगा ये, लर्निंग लेसन्स, बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो आपने इस पर्सन को बहुत ड्रास्टिकली चेंज किया है, बहुत ड्रास्टिकली। मेरे को ये बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वाला आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ना, आपने इस पर्सन को बदल दिया बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली। आप देख लो 2 बार चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स का कार्ड आया है और 2 बार लर्निंग लेसन्स का कार्ड आया है। तो आपके और मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत टाइम का रिलेशनशिप है, लाइक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कुड भी 4-6 ईयर्स, फोर्थ चक्र ब्लॉक हो सकता है। मैंने बोला ना ये पर्सन शाय है, तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत बहुत टाइम से जानते हैं आप इस पर्सन को, और ये बहुत टाइम से चाह रही है कि आप इन्हें अटेंशन दो, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स समथिंग स्ट्रॉन्ग विद यू, ठीक है। निकल के मिला, दो वी are apart, everything has ended, but I still think about you today and the memories we shared. हो सकता है कि किसी के लिए ना, मुझे आ रहा है कि बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है आपकी इस पर्सन के साथ, ठीक है, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है इस पर्सन के साथ। तो ये पर्सन को आपने बहुत बदला है। तो दिस पर्सन, इनके पास बस आपकी मेमोरीज रह गई है, ठीक है। ये अभी भी चाहते हैं कि आपके साथ एक फैमिली हो, सपने हैं,
बट कुछ बचा नहीं है, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपको भी बहुत ज़्यादा है कि आपने इस पर्सन को लूज़ कर दिया है एट अ टाइम। किसी के लिए बड़ा स्पेसिफिक हो सकता है 100% लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, बट कुछ लोगों के लिए ऐसे ही ये रेजोनेट करेगा, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत ड्रास्टिकली चेंज किया है। इस पर्सन का जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट पे हुआ, मुझे ये कुछ सॉर्ट ऑफ अनकन्फेस लव टाइप लग रहा है, ठीक है। अनकन्फेस लव टाइप सिचुएशन लग रही है, लव अनकन्फेस था, और जो भी फीलिंग्स थी, मतलब आपने एज अ पर्सन एक दूसरे को बहुत बदला है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे आ रही है, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा हो सकता है। एंड दिस पर्सन स्टिल डिज़ायर्स कि आपके साथ कुछ हो, एंड आप भी कहीं ना कहीं वो इमोशनल पार्ट कहीं ना कहीं अभी भी है आपके अंदर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था इनवर्स में, इसका मतलब ये कि आपने कुछ टाइम बहुत रेस्ट किया हो, बहुत टाइम अपनी हीलिंग पे फोकस किया हो। आप जब इस पर्सन से दूर गए तो आपको भी बहुत धक्का लगा हो, किसी के लिए बड़ा हो सकता है, ठीक है। बहुत लग रहा है ये देखकर, बस मेमोरीज रह जाती है, पेन रहता है, तो वो चीज़ पेन मुझे सेंस हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपका सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है, अगेन चिट भी आई है, ठीक है। सोशल मीडिया स्टॉक कर रहा है, ठीक है। यार कितनी बार आएगा ये, लर्निंग लेसन्स, बिकमिंग अ बेटर पर्सन। कितना बदला आपने, इस बंदे के दिल से बात बहुत निकल रही है। आपने इस पर्सन को बहुत ड्रास्टिकली बदला है, मतलब अंदर से। यू मेड दिस पर्सन अ बेटर पर्सन, एंड हो सकता है आप भी खुद भी बदले, बट मुझे आपके लिए बहुत लग रहा है कि आपने इस पर्सन को चेंज किया है। तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अंदर से वो है, इनको गिल्ट भी बहुत है, ठीक है। मुझे ये चीज़ आ रही है कि दिस पर्सन हैज़ गिल्ट, जो भी हुआ कुछ, मतलब मेरे को ऐसा आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि सिचुएशंस फेवर में नहीं थी आप लोगों के, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत आ रही है, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये दिस पर्सन के पास गट्स नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, ये अपने आप को एक्सप्रेस ही करते हैं, जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो ये पर्सन नहीं एक्सप्रेस कर सकते, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स इन वर्स आया था। तो आई फील कि दिस पर्सन हैज़ इशूज एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, ठीक है। और आपने भी सब कुछ अनसेट अनक्लियर रह गया, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार चीज़ें वर्कआउट हो जाती तो अच्छा है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग, विल नॉट लेट यू गो। तो मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन कैन कम बैक इन टू योर लाइफ, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोचता है, आज भी यू आर इन दिस पर्सनस हेड, ठीक है। मेरे को लगा ये लव इंटरेस्ट की रीडिंग है, हो सकता है पास्ट में लव रिलेशनशिप भी हो इस पर्सन के साथ, बट आज की डेट में सिर्फ मेमोरीज बची है, ठीक है। मेरे को नहीं पता था कि लव रिलेशनशिप है। तो आप यू आर टेकिंग, आई एम गेटिंग यू चेकिंग फॉर योर एक्स, ठीक है। तो वो चीज़ है, दिस पर्सन डजंट वांट टू लेट यू गो, एंड बहुत मैक्सिमम केसेस में आई एम गेटिंग दिस कि ये पर्सन आएगा, क्योंकि इसको बहुत है अंदर से, बहुत अंदर से है कि इससे आपसे बहुत कुछ सीखा है, एंड दिस पर्सन डजंट वांट टू लेट यू गो, ठीक है। और देखते हैं फॉरगिवनेस, आई जस्ट वांट योर फॉरगिवनेस, सो दिस पर्सन वांट्स योर फॉरगिवनेस। मैंने आपको बोला ना कि दिस पर्सन को रिग्रेट है, तो ये दिस पर्सन वांट्स योर फॉरगिवनेस, ठीक है। यार कितनी बार आएगा ये देखो फिर से आ गया। आई एम स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया वर्ड्स, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग योर सोशल मीडियाज, ठीक है। तो ये आपको आज भी स्टॉक करते हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये पर्सन आपको भूल गया है, तो डेफिनेटली यू आर रॉन्ग, दिस पर्सन हैज़ नॉट, लाइक दिस पर्सन कैन नॉट फॉरगेट यू, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। एक और देखते हैं, आई वॉन्ट टू हर्ट यू, आई वॉन्ट टू सी हाउ मच यू लव मी, इज दिस लव ट्रू, आर वी मेंट टू बी टुगेदर। मेरे को लग रहा है कि बहुत कुछ अनसेड रहा है, मैंने जैसे आपको बोला बहुत कुछ अनसेड रहा है। तो ये पर्सन देखना चाहते कि आपके मन में कोई फीलिंग्स थी या नहीं, या जो भी आपके बीच में हुआ अनकन्फेस लव है, ठीक है। इनको आंसर्स चाहिए, जो भी मेरे को लग रहा है बहुत लोगों, हो सकता है आपके आसपास थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे सेंस हुई थी 2 बार, तो हो सकता है बहुत लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी हो, इंस्टिगेट करा हो, ठीक है। और ये दिस पर्सन नॉट बीइंग एक्सप्रेसिव होगी, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं हुई एंड कम्युनिकेशन गैप रह गया। तो ये हुआ है आपके साथ, मेरे को ये लग रहा है। फिर से आ गया समवन फ्रॉम योर पास्ट, अरे चिट्स इतनी सारी बनाई है मैंने, फिर से रिपीट हो क्या आ रही है सारी। अच्छा, दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर प्योर हार्ट बट रूट, बट आई स्टिल लव यू, आई वॉन्ट योर, बिकॉज आई लव योर हार्ट। मेरे को बार बार मैंने आई वॉन्ट योर हार्ट क्यों बोला। दिस पर्सन इज डेफिनेटली रिटर्निंग 80% 80 से 90% आई वुड से दिस पर्सन इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड दूसरी बार आया है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग एंड वुड नॉट लेट यू गो।
तो दिस पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग, ठीक है. दिस पर्सन फील्स कि आप इस पर्सन को बहुत नर्वसनेस देते हो. मैंने बोला ना आप नर्वसनेस देती हो. इसका दिस पर्सन का हार्ट पेनफुल एंडिंग हुई थी, मैंने बोला है. सारी चीज़ें कंफर्म हो रही हैं, ठीक है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था, वही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो आपकी रीडिंग में आया था. पेनफुल एंडिंग हुई है दिस पर्सन के साथ एंड दिस पर्सन इज रिटर्निंग. बहुत लोगों के केस में आई सी दिस पर्सन रिटर्निंग एंड रिग्रेट्स तो हैं. आई सी रिग्रेट्स, आई सी पेन, आई फील बहुत कुछ इमोशनल, ठीक है. एंड लेट्स चेक मोर. एक बार एंजल गाइडेंस लेते हैं, ठीक है. आपके लिए मैं एंजल गाइडेंस के लिए जल्दी से निकाल रही हूँ, उसके बाद आपकी रीडिंग एंड होगी. रीडिंग लंबी कर दी मैंने, ठीक है. एंजल्स, मुझे मेरे पाइल 1 के लिए सजेशन चाहिए. पाइल 1 और उनके पर्सन के लिए सजेशन चाहिए. पाइल 1 और उनके पर्सन के बीच में कोई येस नो क्वेश्चन होता है ना, तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है. हो सकता है कभी एंजल्स येस नो भी आंसर कर दें, उससे रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट आंसर करते हैं, ठीक है. ये देखो कार्ड आया, बिग हैप्पी चेंजेस. देख लो, मैंने बोला है ना कि दिस पर्सन इज रिटर्निंग बैक. बहुत ब्राइट चांसेस कि दिस पर्सन इज कमिंग बैक. हो सकते हैं कम्युनिकेशन, हो सकते हैं थिंग्स बेटर नाउ, बट कम्युनिकेशन हो. एंड अगर धीरे धीरे भी कम्युनिकेशन होता है तब भी पॉसिबिलिटी कभी ना कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी. तो मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन आ रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है. अपॉर्चुनिटी, तो मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत आ रही है, ठीक है. फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बहुत आ रही है. फाइनेंसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, ठीक है, आपके. एंड हैप्पी चेंजेस में मुझे ये भी लग रहा है कि सक्सेस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, ठीक है. एक और गाइडेंस लेते हैं. पाइल 1 और उनके पर्सन, ठीक है. सक्सेस बोला ना मैंने, देखो सारी चीज़ें कंफर्म हो रही है, ठीक है. सक्सेस डेफिनेटली आ रही है. मॉनेटरी सक्सेस बहुत दिख रही है, ठीक है. इस रिलेशनशिप की भी सक्सेस दिख रही है. एक रिलेशनशिप के लिए एक बार और पूछ लेती हूँ. सक्सेस तो मुझे दिख रही है. बिग हैप्पी चेंजेस और सक्सेस अपने आप में ये चीज़ बोल रही है कि एवरीथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन, लाइक. एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ आपके बीच में, एक साइकिल से गो थ्रू हो सकते हो, कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक साइकिल हो. तो दैट आई एम सीइंग दिस. और देखता है कम्युनिकेट क्लियरली. मैंने बोला ना कम्युनिकेशन गायब है. एंजल्स भी यही बोल रही है, कम्युनिकेट करो अच्छे से. बैक ऑफ द डेक है, मैंने बोला ना कम्युनिकेशन क्लियरली. बैक ऑफ द डेक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव. तो मैक्सिमम, एज आई सेड कि मैक्सिमम लोगों के केस में आई सी दिस. बस बिलीव रखना, ठीक है. ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. डिवाइन पे ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मुझे बहुत लोगों के केस में दिस पर्सन इज रिटर्निंग बैक, या आप इस पर्सन से बात करने वाले हो, कुछ तो ऐसा होने वाला है, ठीक है. बट मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी शाय. हो सकता है कुछ लोगों के केस में ना भी आए, बट अगर आप बात करो तो चीज़ें सॉर्ट हो सकती है, ठीक है. ये एडवाइस भी है कि क्योंकि दिस पर्सन इज शाय, अगर आप एक बार ट्राई करो इस पर्सन से बात करने की, तो सारी चीज़ें इफ़ नॉट सॉर्ट, एक बेसिक लेवल पे अगर बात करो आप इनसे, इनके मन में कहीं ना कहीं आपको, आपके लिए फीलिंग्स है आज भी, ठीक है. मैं बोल रही हूँ आपको, आपके और इनके बीच में कुछ ऐसा हो सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है, ठीक है. तो आई फील सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना. आई वुड से कि आपको आपकी सिचुएशन बेटर पता है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. आई कैन जस्ट गिव सजेशंस, ठीक है. एक आपके लिए भी लेते हैं, ठीक है. ये गाइडेंस आपके लिए लेते हैं, ठीक है. मेरे को मेरी पाइल 1 को गाइडेंस देना. पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है? कार्ड ही नहीं आ रहा. क्यूपिड्स एरो. न्यू लव इज सून गोइंग टू क्रॉस योर वे. नया लव आ रहा है, या मेरे को तो मैक्सिमम लोगों के केस में लग रहा है कि नया लव नहीं आ रहा, पुराना लव ही वापस आ रहा है, ठीक है. बोला था मैंने, सुनिए. यू आर जस्ट लुकिंग एट योर साइड ऑफ सिचुएशन, यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. तो एंजल्स आर टेलिंग कि आप अपनी साइड ऑफ सिचुएशन देख रहे हो, आपको और चीज़ें मतलब जानने की ज़रूरत है. तो आई वुड सजेस्ट, आपकी सिचुएशन आपको ज़्यादा बेटर पता है, बट मुझे लग रहा है कि यू नीड टू कम्युनिकेट, क्योंकि दिस पर्सन हैज़ इशूज़ स्पीकिंग. ये बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हो सकता है, ठीक है. दिस पर्सन हैज़ इशूज़ कम्युनिकेटिंग. तो एक बार आपको इनिशिएट लेकर बात करनी चाहिए, ठीक है. इफ़ नॉट ओपन हार्टेडली, एक फ्रेंडली वे में बात करो. हो सकता है फ्रेंडली वे में एक बार कन्वर्सेशन स्टार्ट हो तो कभी ना कभी वो चीज़ बाहर आ, जिस वजह से सेपरेशन हुआ है, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई है. तो थोड़ा फ्रेंडली वे में यू कैन अप्रोच दिस पर्सन, बट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू अ लॉट, ठीक है. पीपल अराउंड यू आर नेसेसरी नॉट योर वेल विशर्स. डोंट ट्रस्ट देम, दे आर गाइडिंग यू इन रॉन्ग डायरेक्शन. वर्क प्लेस पॉलिटिक्स गाइडेंस आपके लिए देख लो. डोंट लूज होप इवन इफ यू हैव लॉस्ट ऑल योर होप्स, एज योर hopes can give you your last opportunity.
हो सकता है सम ऑफ यू कुड बी हैविंग थोड़े बैड ड्रीम्स एज वेल. आई गॉट दिस. सो मैं एक बात बोलूँगी कि दिस इज़ अ सजेशन, ठीक है. आपको आपकी सिचुएशन ज़्यादा बेटर पता है, ठीक है. एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो आई कैन जस्ट गिव सजेशन कि आप एक बार अपनी पर्सन से बात करो, ठीक है. हो सकता है अगर आप लाइट में भी बात करो, फ्रेंडली मैनर में भी बात करो, अगर ये पॉसिबल है तो आपको एक बार बात करनी चाहिए. दिस इज़ माई सजेशन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिस सिचुएशन हैज स्कोप, ठीक है. आपका इस पर्सन के साथ मैरिज बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दिस पर्सन लाइक्स यू, एडमायर्स यू एंड वांट्स टू गेट मैरिड टू यू, ठीक है. तो एंड इवन आई फील यू लाइक दिस पर्सन, ठीक है. तो आई फील कि यू शुड टॉक टू दिस पर्सन एंड मेंट करनी चाहिए अपने मतलब इस सिचुएशन को मेंट करना चाहिए. सो दिस इज़ अ सजेशन, ठीक है. बाकी आपको आपकी सिचुएशन ज़्यादा बेटर पता है, ठीक है. बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट यू. फॉर अदर हाफ ऑफ यू आई वुड से कि एक बार ट्राई कर लो, ठीक है. रेस्ट इट्स योर लाइक फ्री विल है, ठीक है. अपने हिसाब से देखना, अपनी सिचुएशन को देखना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आई कैंट से मच, तो अपने हिसाब से देखना, ठीक है. दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम डिवाइन, ठीक है. दिस इज़ फॉर रीडिंग पाइल 1. सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़, ठीक है. सो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने ये पाउच चूज़ किया है, तो आपका ब्लू फेवरेट कलर हो सकता है. ब्लू, ग्रीन, पिंक, रेड, वाइट. आई एम गेटिंग दिस, ठीक है. अगर कलर्स ये सारी चीज़ें मैच करती तो रीडिंग और एडिक्वेटली मैच करती है. दैट्स व्हाट. किसी का नाम रितिका हो सकता है, ठीक है, वेरी स्पेसिफिक. या फिर आपके नाम में लेटर्स आ सकते हैं RITKA, ऐसे करके कोई लेटर्स, ठीक है. एंड या आपकी पर्सन के नाम में हो सकते हैं, जो स्पेशल पर्सन आप जिसके बारे में देख रहे हो. आई सी यू कैरी अ लॉट ऑफ बर्डन, ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकर हो सकते हो एंड बर्डन लग रहा है, ठीक है. बहुत कुछ सोचते हो, बहुत कुछ अंदर सप्रेस कर रखा है, वो चीज़ मुझे आ रही है, ठीक है. लेट्स चेक. बहुत डिस्टर्बेंसेस लग रही है मुझे. आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. थर्ड पार्टी कुड बी करियर, कुड बी एक्सेस, कुड बी फैमिली सिचुएशन, ठीक है. फैमिली भी थर्ड पार्टी होती है. थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी बहुत लग रही है. डिस्टर्बेंसेस बहुत है इस रीडिंग में, तो इसलिए आई सेंस की थर्ड पार्टी बहुत है, ठीक है. लेट्स चेक. अभी पाइल 2 करंटली क्या फील करिए, ठीक है. जितना वुड मैच विद यू, ठीक है, अकॉर्डिंगली अपने पर्सन के लिए भी देखना, ठीक है. इफ़ 90% resonated with you, then 90% would resonate for your special person as well. This special person could be X, could be the person you admire. कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो अभी. लाइक पाइल 1 के लिए आया था, इट वॉज लुक मोर लाइक लुकिंग लाइक X, ठीक है. मुझे बहुत ज़्यादा X लग रहा था किसी का, तो X हो सकता है या फ्रेंड हो सकता है जिसके बारे में आपको जानना है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है. कुड बी दैट वे, कुड बी क्रश हो सकता है, ठीक है, दैट वे. तो लेट्स चेक. पहले आपका देखते हैं मेरी पाइल 2 अभी करंटली क्या सोच रही है. सो मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हो जो आपको, मैंने बोला ना, मेरे को थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत गैस हो रही है, लाइक बहुत आ रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन. मुझे लग रहा है आपके आसपास लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो, मुझे आ रहा है, ठीक है. रेस्ट सीज पाइल. what is pile 2 thinking about currently? Like मुझे लग रहा है अपनी लाइफ में यू आर रेजिस्टिंग चेंज इन टू योर लाइफ, ठीक है. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. एंड आई फील कि अभी यू आर बिहेविंग रूड विद पीपल अराउंड यू, ठीक है. मैंने बोला था चेंज रेजिस्ट कर रहे हो, डेथ इन वर्स आ गया. तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ पे बेटरमेंट के लिए आता है. आपकी लाइफ जो होती है ट्रांसफॉर्म आपकी बेटरमेंट के लिए होती है, ठीक है. देयर कुड बी सर्टेन वेल विशर्स एज वेल, बट मुझे ज़्यादा वेल विशर्स नजर नहीं आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है. आप अपनी लाइफ में एक बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी आ रही है, उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है. एंड दिस कुड बी बिकॉज अभी आप थोड़ा यू नॉट बिहेविंग वेल. आप पीपल अराउंड यू आर नॉट सीइंग यू इन गुड लाइट. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. अभी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग इगोइस्टिक थोड़ा बिहेव कर रहे हो. एंड मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है विद दिस हर्मिट, ठीक है. हर्मिट आई सी कि यू नीड टू फोकस अ लॉट ऑफ एनर्जी
ऑन योर सेल्फ। हो सकता है कुछ लोग कर भी रहे हो, बट अगर नहीं कर रहे हो तो मेरे को लग रहा है फ्यूचर में हरमिट जा सकते हो, लाइक फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ, मोर ऑफ योर एनर्जीज ऑन योर सेल्फ, ठीक है। एंड एनालाइजिंग कि कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो, बिकॉज आई सी कि अभी यू हैव लॉट ऑफ सीक्रेट एनिमीज। क्यों बोला नहीं पता, लाइक आई फील यू बिलीव इन गिविंग टिक फॉर टैग। अगर किसी ने गलत किया तो आप गलत करोगे, किसी ने सही किया तो सही करोगे। दैट वे यू हैव नेचर, लाइक यू बिलीव इन गिविंग टिक फॉर टैग टू पीपल अराउंड यू, ठीक है। आई फील दिस पर्सन इज समवन वेरी स्पेशल, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स साथ में है, तो यू थिंक दिस पर्सन एज अ पावर कपल देखते हो, या कुछ काउंटर पार्ट एनर्जीज आ रही है। लाइक यू फील कि दिस पर्सन इज़ लाइक अच्छा हस्बैंड वाइफ मटीरियल टाइप वाइब्स आ रही है, ठीक है। एंड मेरे को लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ इग्नोरिंग यू अभी ज़्यादा। दिस पर्सन इज़ नॉट फोकस्ड ऑन यू, मोर फोकस्ड ऑन वर्क, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। दिस पर्सन ऑल्सो थिंक्स अबाउट यू, ठीक है, डेफिनेटली, बट मोर फोकस्ड ऑन वर्क आ रहा है, ठीक है। एंड यू ऑल्सो नीड टू फोकस योर एनर्जीज ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अभी आसपास के लोगों के साथ हो सकता है कि इनके साथ जो भी आपके और इनके बीच में हुआ उसकी वजह से यू हैव बिकम समवन थोड़ा रूट, ठीक है। एंड लाइक हैंगमैन एनर्जी, अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो करोगे फ्यूचर में, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी फेवर में होने वाली है, अगर अभी थिंग्स आर नॉट इन फेवर, ठीक है। एंड हो सकता है कि आगे थिंग्स वो टर्न। मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लोग इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक मिनट, तो किसी की लाइफ में सिबलिंग्स कुड बी सिग्निफिकेंट, यू कुड बी शेयरिंग योर सीक्रेट विद योर सिबलिंग्स या कुछ ऐसे। आई एम गेटिंग दिस शेयरिंग आ रहा है मुझे, बट अभी मुझे ऐसा आ रहा है कि जो भी वट एवर हैपन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, आप बहुत ज़्यादा ऐसे डोमिनेटिंग बिहेव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे हो। एंड सेकेंडली यू कुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर लुक्स, मुझे ये चीज़ आ रही है, ठीक है। एंड आई फील योर पर्सन इज़ वेरी लाइक जिसके बारे में भी आप रीडिंग करवा रहे हो, दिस पर्सन इज़ वेरी डाउन टू अर्थ वाइब्स आ रही है मुझे, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी बैलेंस पर्सनैलिटी। ऑड्स और इवेंट्स को मैनेज करना आता है, पता नहीं क्यों ऐसे बोला, बट बोला। मेरे को लग रहा है इनकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं या हो सकती है। एंड कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी को भी देख रही है, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर यू। अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है देन सी फॉर ए पार्टनर, कि पार्टनर का देखते हैं आप, ठीक है। मैं ये वाला छोटा सा डेक यूज़ करूँगी, ठीक है। आप देखते हैं what does pile 2 special person think about them, what does pile 2 special person think about them। इनका थ्रोट चक्रा कुड बी ब्लॉक्ड, ठीक है। ये आपके लिए भी हो सकता है, डीप भी हो सकते हैं, बट आई एम गेटिंग दिस फॉर दिस पर्सन कि दिस पर्सन wants to speak something and ends up speaking something else, ठीक है। एंड लेट्स चेक what does pile 2's person, the special person, feel about them, think about them। बहुत कॉन्फिडेंस है इस पर्सन में, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दिस कुड बी फॉर ईदर फॉर यू और फॉर देम। मुझे बार बार इनके लिए आ रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग एंड ये बहुत ज़्यादा बोल्ड बन रही है, लाइक बोल्ड है। दिस पर्सन इज़ नॉट शोइंग हर ट्रू सेल्फ, बहुत इंट्रोवर्ट है, डजंट रिवील वट एवर शी इज़ गोइंग थ्रू, बट शी इज़ नॉट गिविंग अप, ठीक है। मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल इशूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही शी कुड बी इधर ये पूरे अपने एफर्ट्स कर रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये एफर्ट्स कर रही है पूरी कि इसको ये जो भी है ये मिल जाए, ठीक है। ये अपने पूरे एफर्ट्स कर रही है, ठीक है। एंड बहुत सारा स्ट्रगलिंग फेज लग रहा है, ठीक है। अभी ही और शी इज़ मोर इनटू देमसेल्व्स, ठीक है। मुझे ये चीज़ आ रही है,
ठीक है। बहुत सारे इमोशंस हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बहुत एडअप हुई है, लाइक कुड बी फाइनेंशियल इश्यूज एंड जो कुछ भी वट एवर हैपन बिटवीन यू बोथ, वो भी चीज़ बहुत एडअप हुई है इनकी लाइफ में, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा सैड है, डिप्रेस्ड है, होप नहीं दिखती, बट डेफिनेटली सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखाती है, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, वेरी बोल्ड, ठीक है, वेरी बोल्ड वाइब्स आई हुई है, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स इन वर्स, आई फील कि इनके सारे स्ट्रगल्स जो भी है वो एंड होने वाले हैं, ठीक है। एंड आई फील इफ़ दे आर पीपल अराउंड यू जो मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आई फील आर गोइंग टू गेट क्लियर सून, एयर इज़ गोइंग टू बी क्लियर। ऐसा क्यों बोला नहीं पता, बट मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का था वो सब क्लियर होने वाला है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। टावर एंड वर्स, दिस पर्सन इज वेरी मच इनटू फिक्सिंग हर ओन लाइफ, ठीक है। अभी देयर कुड बी समथिंग हैपन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन फील्स कि इन शी और ही हैज़ अ फीलिंग ऑफ फिक्सिंग, ठीक है। मैंने बोला था थर्ड पार्टी है, दैट्स व्हाट आई टोल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो वेज है यहाँ पर, तो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स चेक व्हाट डज योर पर्सन फील अबाउट यू। This person views you as someone who is very this person knows that you are stalking him or her. इनको this person is very well aware that you are stalking this person, and you are very emotional, and this person is aware that अगर if you are manipulating this person, so this person is very much like इनको पता है कि you are manipulating her or him, whatever, and this person is दिस पर्सन कुड बी हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिवनेस मुझे लग रही है, बिकॉज जो भी आप करने वाले होते हो दिस पर्सन गेट्स टू नो। आप देख रहे हैं कैट कैसे स्नीकिंगली चेक रख रही है, इसको पता है कि ये दिस पर्सन इज ट्राइंग टू लाइक टेस्ट ऑल देयर स्पेल्स, और इनकी जो स्पेल्स है वो सारी गलत जा रही है, वो इसलिए जा रही है क्योंकि इस कैट को ऑलरेडी पता है, वो ऊपर से देख रही है। तो दैट वे दिस पर्सन को इंट्यूटिवली लाइक कैट इज आई सी समवन, कैट को ऐसी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी और जिसकी इंट्यूटिवनेस बहुत हाई हो। दिस पर्सन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन, और दिस पर्सन इज नो लाइक दिस पर्सन नोज like this person reads you very well, that's what I am getting, and this person knows whatever you are trying on them, like अगर आप इनको manipulate कर रहे हो, अपनी feelings hold back कर रहे हो, this person knows कि you are very possessive about them, even though you would be showing कि you are not possessive, but this person is very well aware that you are possessive about them, and this person thinks about you a lot. 6 of cups inverse आया, ये this person thinks about you day and night, ठीक है। डे एंड नाइट मुझे लग रहा है बहुत सोचती है, तभी इनकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत हाई है, ठीक है। बहुत स्नीकिंगली चेक रखती है आप पे। दिस पर्सन कुड बी वेरी स्वीट हार्टेड, बहुत कट थ्रोट पर्सनैलिटी हो सकती है, बहुत कभी कभी रूड हो जाती हो, ठीक है। एट द सेम टाइम जेनरस भी है, ठीक है। वॉट डज दिस पर्सन लाइक पाइल टूज पर्सन फील अबाउट दैम। अभी उन्हीं का आ रहा है बार बार, मेरे को लग रहा है कि दिस पर्सन इज मोर फोकस्ड ऑन हरसेल्फ और हिमसेल्फ, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। रेस्ट देखते हैं, व्हाट डज पाइल टूज पर्सन थिंक अबाउट दैम। मुझे लग रहा है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है, द वे यू आर बिहेविंग विद दिस पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग इट। इनको लग रहा है कि यू आर बिहेविंग वेरी रूड विद देम, एंड इनको सब समझ में आ रहा है। लाइक अगर कुछ मैनिपुलेशन चल रही है, इवन अगर ये एक अनकन्फेस सिचुएशन है एंड यू वांट टू गेट, किसी के लिए बड़ा स्पेसिफिक आया है, ठीक है, यू वांट टू नो द ट्रू रियल फीलिंग्स, और आप थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हो, या कुछ जानने के लिए आप मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हो। दिस पर्सन इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस,
ठीक है. तो दिस पर्सन इज फीलिंग दैट यू आर बिहेविंग वेरी रूड विद दिस पर्सन, ठीक है. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेल अवेयर दैट यू आर स्टॉकिंग दिस पर्सन. कहीं ना कहीं से तो दिस पर्सन हैज सोर्स या कुछ, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. कुछ पहले इनको कन्फ्यूजन था आपको लेकर कि पहले बहुत कुछ सोच रही थी कि फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा प्लान्स थे. बट अभी इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है, लाइक मोर फोकस ऑन अपने करियर पे, ठीक है. बिकॉज बहुत कुछ आपके बीच में आर्ग्यूमेंट या कन्फ्लिक्ट दिख रहा है. तो दिस पर्सन हैज़ फोकस्ड हिज हर एनर्जीज ऑन करियर, ठीक है. ये और कहीं फोकस नहीं कर रही. बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेल अवेयर जो भी आप कर रहे हो, लाइक ये आप पे बहुत चेक्स रख रही है, ठीक है. ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रही है, दैट्स फॉर श्योर. कन्फ्यूज्ड भी आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आप इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो. कन्फ्यूज्ड भी है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एंड दिस पर्सन व्यूज़ यू एज समवन थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है. जजमेंट आ रही है. मुझे लग रहा है कि सारी सिचुएशन डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. दिस पर्सन फील्स कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. दिस पर्सन हैज़ लॉस्ट ऑल हर होप्स. इनको लगता है कि अब शायद कुछ भी रिजॉल्व नहीं हो सकता. एंड दिस पर्सन इज़ लाइक सप्रेसिंग हिज हर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, ठीक है. एंड आप भी कर रहे हो एंड दिस पर्सन ऑल्सो, ठीक है. बट मुझे लग रहा है कि यू वॉन्ट टू विन दिस पर्सन बैक या कुछ ऐसे, किसी के लिए तो बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है. बैलेंस्ड एनर्जीज नहीं है, ठीक है. ये पर्सन बैलेंस डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही, ठीक है. बट ये अभी क्लियर है कि इनको थोड़ा करियर वाइज फोकस करना है, ठीक है. फाइनेंशियल इश्यूज़ पे बहुत फोकस करना है. एंड समवन हेयर कुड बी वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है. मुझे ये चीज़ आई है, म्यूज़िक का फॉन्डनेस हो सकती है, ठीक है. फीलिंग्स इनकी भी बहुत है, ठीक है. बट अभी देखो लवर्स इन वर्स आया, ठीक है. लवर्स इन वर्स का मतलब ये है कि ये अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रही है, सप्रेस कर रही है अपने आप को बहुत ज़्यादा, इमोशंस को. एंड मुझे लग रहा है बहुत गो विद द फ्लो टाइप सिचुएशन है, ठीक है. ये अपनी नई बिगनिंग पे फोकस कर रही है, चाहती है कि सारी चीज़ें इनकी लाइक फेवर में हो जाए. अभी ये फाइनेंसेस पे बहुत फोकस है और बहुत स्टक फील कर रही है आपके साथ. अभी तो करंटली ये है, इमोशंस है, सप्रेस कर दिए हैं. डेफिनेटली दिस यू वर दिस पर्सन सनशाइन. बट कुछ ऐसा हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके और इस पर्सन के बीच में कि अब इन्हें लगता है कुछ फिक्स नहीं हो सकता, ठीक है. बट आई सी विद दिस जजमेंट आई फील कि चीज़ें फिक्स हो सकती है. अभी भी बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है. डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी. बट मुझे इंटरफेरेंस बहुत लग रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत लग रही है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है. एंड दिस पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट क्योंकि इन्होंने अपनी सारी होप्स लूज़ कर दी हैं. ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है. हाँ, इन्होंने अपनी एनर्जी फोकस कर लिया है कुछ वर्क पे या ऐसे. ये पहले अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही थी. हो सकता है आपसे मूव ऑन करने के लिए किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, मूव ऑन करने के लिए किसी और को डेट करा हो या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आई हो. बट वो सब फेक था, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. बट अभी करंटली शी और ही इज़ मोर फोकस्ड ऑन वर्क, ठीक है. अपनी एनर्जीज फोकस कर रखी है. हाँ, इनकी एनर्जीज फोकस नहीं है. एंड इनको लगता है कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. एंड दिस पर्सन डेफिनेटली कंसिडर्स यू अ स्टार. ये चाहती हैं कि एवरीथिंग मतलब आपके साथ एक रिलेशनशिप हो या अंडरस्टैंडिंग हो. कुछ लोगों के लिए मैरिज भी दिखती है कि दिस पर्सन वांट्स मैरिज. बट अब इन्हें लगता है कि कुछ सॉर्ट नहीं हो सकता. उम्मीद चली गई है, लाइक होप्स, आई डोंट सी एनी होप्स, ठीक है. सो इन्होंने क्या किया कि अपने आप पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने सेल्फ लव पे फोकस कर रही है, अपनी एनर्जीज अपने पे फोकस करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को लाइक भूलने की कोशिश कर रही है. हालांकि इट्स नॉट ईजी फॉर हर. हम लाइक इमोशनल बहुत वो है. अपने इमोशंस को बस इन्होंने सप्रेस कर दिया है, सोचना बंद कर दिया है. लाइक इनकी एनर्जीज बहुत ब्लॉक्ड है, सोच नहीं रही है आपके बारे में बिल्कुल भी. अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, आपके बारे में अपने आप को सोचने का टाइमिंग दे रहे हैं या दे रही है, ठीक है. बिकॉज इन्हें होप ही नहीं है कि कुछ हो सकता है या कुछ. डेफिनेटली एक टाइम पे बहुत अच्छा गिव एंड टेक मुझे लग रहा है, इमोशंस थे, लव था, ट्रू इमोशंस थी. बट अभी करंटली दिस पर्सन इज ब्लॉकिंग हिज हर एनर्जी. इन्हें कोई होप नहीं है, ठीक है. एंड अब इन्हें कोई इट्स लाइक फ़र्क पड़ता है जो भी आप करते हो, इन्हें सब पता है. बट अगेन ये अपने आप को फोकस कर रही है.
इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आपने बिहेव किया है वो शायद ये कभी फॉरगिव ना कर पाए, लाइक द वे यू हैव बिहेव, दिस पर्सन फील्स दैट यू हैव मैनिपुलेटेड दिस पर्सन अ लॉट, ठीक है। एंड बहुत रूड एनर्जी आ रही है, इनको लगता है कि यू आर वेरी रूड। एक बार आप जो सोच लेते हो वो सोच लेते हो, आप इनकी नहीं सुनते, आपने इनके ओपिनियंस कंसिडरेशन में कभी नहीं लिया, आपने इनके ओपिनियंस की कभी रिस्पेक्ट नहीं करी, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है अंदर से। एंड ये बहुत पास्ट को सोच के रेमिनिस करती है। एंड नो डाउट ये आपको बहुत कॉन्फिडेंट देखती है, बहुत केपेबल देखती है, एंड बहुत कुछ चाहती है कि रिलेशनशिप हो या मैरिज हो, चाहती है। बट अगेन इन्हें लगता है कि अगर होगा भी तो फ्यूचर में क्या स्कोप है, फ्यूचर में क्या गारंटी है कि आप इनकी केयर करोगे, आप इन्हें समझोगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पहले हुई वो फिर से नहीं होगी। तो इनको बहुत डाउट्स हैं, ठीक है। बट ये आपको बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी देखती है, ठीक है। बहुत ट्रू इमोशंस हैं इनके भी, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत ट्रू इमोशंस है। आई थिंक कि इन्होंने ना बस अपने मन में ना सब कुछ डिस्पोज ऑफ कर दिया। देखो लवर्स इन रिवर्स फिर से आया है, ठीक है। तो इनके हार्ट में है डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप। देखो मैंने बोला ना डेविल नेगेटिव एनर्जी है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, रीडिंग से पहले ही मैंने ये बात बोली, सारी चीज़ें कंफर्म हो रही है, देख लो तुम। लवर्स इन वर्स और ये 9 ऑफ कप्स और लवर्स इन वर्स में मेरे को ये लग रहा है कि डेफिनेटली यू वर दिस पर्सन्स विश फुलफिलमेंट, ठीक है। बहुत ट्रू इमोशंस है। बट इन्होंने एक वो होता है ना कि छोड़ दिया है, नहीं करना और फाइट, बस गिव अप कर दिए, वो चीज़ आ रही है। इमोशंस बहुत ट्रू है, बहुत प्योर इमोशंस है आपके लिए। फैमिली भी देखती थी आपके साथ, बहुत कुछ था, मतलब बहुत इमोशंस थे जो इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। बस अब और नहीं सोचना चाहती है। इमोशंस है, अभी भी है, बट सप्रेस कर दिया, सोच ही नहीं रही है उस डायरेक्शन में, सोच के अपने आप को स्ट्रेस नहीं दे रही है, दे रहे हैं या दे रही है, however resonates, इन्होंने बस छोड़ दिया है, ठीक है। यूनिवर्स के हाथों छोड़ दिया। बट आई सी जजमेंट कमिंग, सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। मेरे को लग रहा है यहाँ पर कम्युनिकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो ओपन हार्ट कम्युनिकेशन करना, ठीक है। ओपन हार्ट कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाट इम्पॉर्टेंट। अगर आप बात कर रहे हो तो लाइक सजेशन मेरे को ये यूनिवर्स से आ रहा है, ठीक है। ये टेक है, चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। पाइल 2 की पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं, पाइल 2 की पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं, पाइल 2 की पर्सन उनके लिए क्या फील करती है, पाइल 2 की पर्सन उनके लिए क्या फील करती है, पाइल 2 की पर्सन उनके लिए क्या फील करती है। सेल्फ रिस्पेक्टिंग, टेकिंग स्टैंड, सपोर्टिंग व्हाट इज़ राइट। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन, मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है कि इस पर्सन ने सिचुएशन लीव करी है, ठीक है। आपके बीच में जो भी हुआ है, इन्हें कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया, आपने मेरी रीडिंग देखकर आपको ऐसा लगा है कि मैंने गलत बोला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना, मैंने आपको बोला थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी डेविल भी आया है, तो मेरे को बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इनको मिसगाइडेंस बहुत मिली है लोगों ने, इनको कुड बी हर और हिम मिसगाइड बहुत करा है आपके लिए, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है आप बहुत रूड हो, बहुत इनके साथ आपने गलत किया है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इनके बारे में इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना आपको लेकर, वो आपको क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। तो इनको लगता है इन्होंने अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने लिए स्टैंड लिया है, तो इनको कुछ गलत नहीं लगता। 9 ऑफ पेंटिकल्स वही जो आया था, तो ये अपने ऊपर फोकस कर रही है एनर्जीज, ठीक है। व्हाट डज पाइल 2 पर्सन थिंक अबाउट हिम। दिस पर्सन वांट्स कि आप इनसे मेरे को ऐसा लग रहा है ये म्यूचुअल फॉरगिवनेस चाहती है। ये चाहती है कि आपके बीच में ओपन हार्ट डिस्कशन हो, चाहती हैं, बट कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इन्होंने होप छोड़ दी है। कुछ तो ऐसा हुआ है कि इनकी सारी होप्स चली गई हैं, एंड दिस पर्सन वांट्स कि आप इनसे फॉरगिवनेस मांगो या कुछ ऐसे। ये भी आपसे फॉरगिवनेस मांग सकती है, बट अगर आप इनसे ओपन हार्ट कम्युनिकेशन करो तभी, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है, तो इन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया है। दैट्स व्हाट आई फील, विच इज़ नॉट रॉन्ग उनकी नज़रों से आप देखो तो, क्योंकि आई सी कि अभी आप अपना एंगल देख रहे हो, अगर आप उनका एंगल देखोगे तो आपको सिचुएशन एग्जैक्ट समझ आएगी, ठीक है। What does pile 2's person feel about them? What does pile 2's person think about them? We are done now. We'll never meet you again. So this person feels कि अब मैंने बोला ना, इन्होंने अपना मन बना लिया, वही कंफर्मेशन जो भी मैंने आपको बोला उसकी कंफर्मेशन है ये। दिस पर्सन फील्स कि अब सब खत्म हो चुका है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, इन्होंने अपनी सारी होप्स ख़त्म कर दी हैं कि आपके और इनके बीच में कुछ ठीक भी हो सकता है, ये अपने ऊपर फोकस कर रही है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक
ठीक है। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ 18+ थॉट्स फॉर यू। मैंने वही बोला कि इनको आपके साथ फैमिली चाहिए, ये चाहती है बहुत कुछ, बट अगेन चाहते हैं या चाहती है, बट अगेन इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, सोचते ही नहीं है उस रास्ते में, सोचना ही नहीं है, अपनी एनर्जीज को रोक दिया इन्होंने। दिस पर्सन एंड दिस सिचुएशन इज नॉट फॉर यू, यू हैव समवन बेटर कमिंग इन योर लाइफ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको हो सकता है किसी ने ये चीज़ बोली हो कि दिस पर्सन, ये पर्सन मतलब इनको गाइडेंस मिली है या कुछ तो ऐसा किसी ने मिसगाइड किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट मेंट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। आई डोंट लव यू, बैटल इज ओवर, साइलेंस। तो मुझे यही लग रहा है कि नो कम्युनिकेशन लग रही है बहुत लोगों के लिए, मुझे कम्युनिकेशन नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन मिसिंग है, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत लग रही है, ठीक है। तो मैंने जो बोला आपको वही बात कंफर्म हो रही है कि ये सोचना ही नहीं चाहती आपके बारे में, ठीक है। ये बस अपने आप को ज़बरदस्ती समझाई जा रही है, ज़बरदस्ती समझाई जा रही है, मुझे ये बहुत आ रहा है, ठीक है। ज़बरदस्ती समझा रही है कि आपके और इनके बीच में नथिंग इज़ लेफ्ट, कुछ भी रिजॉल्व नहीं हो सकता। अगर ये फ्रेंडशिप भी है, बट मुझे फ्रेंडशिप नहीं लगती, 2 बार लवर्स एंड रिवर्स आ चुका है, फ्रेंडशिप से बहुत आगे चीज़ें बढ़ चुकी थी। 18+ थॉट्स बहुत है, दूसरी बार कार्ड आ रहा है। दिस पर्सन व्यूज यू एज समवन हु इज़ वेरी गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल। देखते हैं पाइल 2 के पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 2's person, what does पाइल 2's person think about them? What does पाइल 2's person think about them? Learning lessons, becoming a better person. Definitely this person को लगता है कि this person has learned a lot from you, ठीक है। हो सकता है आपके और इनके बीच में जो भी हुआ, this person has learned a lot from you and for the same ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करती है, ठीक है। करते हैं या करती हैं। You matter to me, you are important. हो सकता है पास्ट में मेरे कोई पास्ट एनर्जी आ रही है, पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपको एक्सप्रेस ना किया हो कि यू आर इम्पॉर्टेंट टू दिस पर्सन, बट ये कभी एक्सप्रेस ना किया हो, ठीक है। बहुत सीरियस वाइब्स आ रही है कि बहुत सीरियसली आप इनके लिए मैटर करते थे, बट मेरे को लग रहा है ये चीज़ें अनएक्सप्रेस्ड रह गई पास्ट में, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इन्होंने बात ही नहीं करी या आपने इनसे बात नहीं करी, क्लियर कम्युनिकेशन गायब है, ठीक है। फॉरगिवनेस फिर से आया है। तो अगर इनको लगता है कि इट्स लाइक मुझे ये जो फॉरगिवनेस वाला आ रहा है, मुझे आ रहा है कि या तो आप इनसे फॉरगिवनेस मांगो या दिस पर्सन इज़ लाइक मुझे माफ़ करो, आई डोंट वांट एनीथिंग, ऐसे करके दिस फॉरगिवनेस आई एम गेटिंग, दिस पर्सन वांट्स टू रन अवे फ्रॉम। अब ये इट्स लाइक दिस पर्सन डजंट वांट एनीथिंग, दिस पर्सन इज़ कुछ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये डेविल एनर्जीज है, किसी ने बहुत थर्ड पार्टी में मिसगाइड किए हैं, ये मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी कहाँ से आई है, नहीं है कोई भी, तो आपको गलत लगता है, बहुत लोगों ने मिसगाइड किया है। ट्रस्टवर्दी, आर यू द वन? तो इनको ट्रस्ट इश्यूज है आपसे, मैंने आपको बोल दिया इनको ट्रस्ट इश्यूज है बहुत ज़्यादा। इनको लगता है, देखो मेरे को लग रहा है इस सिचुएशन में स्कोप है, बट ओपन हार्ट कम्युनिकेशन होने की बहुत ज़रूरत है, ऑनेस्टली आई वुड से दिस। एक और चीज़, आई एम सॉरी फॉर वट एवर आई डिड टू यू, माई इंटेंशंस वर नॉट टू हर्ट यू। इनको एट द सेम टाइम रिग्रेट भी है, ठीक है। ये आपसे भी फॉरगिवनेस चाहती है और ये चाहती कि मतलब म्यूचुअल, आप दोनों की म्यूचुअल बात हो और आप एक दूसरे से फॉरगिवनेस मांगो, ये पर्सन चाहती है कि चीज़ें सॉर्ट हो, बट अभी लाइक इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि इन्हें होप नहीं लगती, ठीक है। इनको लगता नहीं कि अब कभी भी आपकी इनसे बात होगी या कुछ, ठीक है। ये होप छोड़ चुकी है, ठीक है। हाँ, मैंने बोला ना शॉर्ट टेम्पर्ड एग्रेशन इश्यूज़, तो दिस पर्सन फील्स कि आपके बहुत सारा शॉर्ट टेम्पर्ड एग्रेशन इश्यूज़ हैं एंड इनको लगता है अगर आप ये आपसे इंटरेक्ट करेंगी ना तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, तो फ़ायदा ही नहीं आपसे बात करने का। दैट वे दिस पर्सन इज़ गेटिंग दिस मिस्ट्री, व्हाट्स नेक्स्ट। तो दिस पर्सन डजंट नो कि अब नेक्स्ट क्या होगा। मून एनर्जीज है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर लिया, वही बात मैं आपको बोलूँगी। दिस पर्सन डजंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, तो ये अपने आप को डिटैच कर रही है सिचुएशन से। कम्युनिकेशन इश्यूज है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये बोलने में बहुत ज़्यादा लाइक एक्सप्रेसिव ना हो, ठीक है। ये पहले भी आया था कार्ड शायद। आई एम कन्फ्यूज, अगेन मून एनर्जीज है, तो कन्फ्यूजन बहुत है, ठीक है। आई हाइड माई ट्रू इमोशंस फॉर यू, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स पहले भी आया था।
अभी भी आया है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग एंड विल नॉट लेट यू गो. सो दिस पर्सन डजंट वांट टू लेट यू गो. ठीक है, ये देखना चाहती कि यू अभी भी दिस पर्सन वांट्स टू लाइक नो कि यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन और नॉट. ठीक है, तो दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक इन योर लाइफ. ऑनेस्टली अगर आप बात करोगे, चीज़ सॉर्ट करने की कोशिश करोगे, ये पाइल को भी मैंने सजेशन दिया था, सॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो थिंग्स विल बी लाइक इन योर फेवर, चीज़ें सॉर्ट होंगी. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. एंजल गाइडेंस लेते हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. ठीक है, एंजल्स पाइल 2 और पाइल 2 के पर्सन को के लिए गाइडेंस देना. पाइल 2 एंड पाइल येस नो क्वेश्चन होगा तो वो भी आंसर हो जाता है कभी कभी. ठीक है, पाइल 2 और पाइल 2 के पर्सन के लिए गाइडेंस देना समवन स्पेशल के लिए. ट्रस्ट. मुझे लग रहा है मैंने ट्रस्ट वर्दी पहले भी आया था, तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, तो एक दूसरे पे ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है और साथ में डिवाइन पे भी ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है कि सारी चीज़ें वर्कआउट होगी. ठीक है, मुझे लग रहा है जजमेंट आएगी, थिंग्स विल टर्न आउट इन योर फेवर. बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करोगे तो हो जाएगा. ठीक है, डोंट स्टॉप. तो अगर आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो डिवाइन इज सेइंग कि डोंट स्टॉप. मुझे करियर रिलेटेड आ रहा है, बहुत करियर रिलेटेड हो सकता है, या कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि मुझे इस रिलेशनशिप से होप रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप आ रहा है बहुत लोगों के लिए. ठीक है, ऑनेस्टली आई वुड से रिलेशनशिप आ रहा है, तो डिवाइन इज गाइडिंग कि अभी भी स्कोप है एंड यू शुड मेंट थिंग्स. दैट्स व्हाट मुझे ये आ रहा है. ठीक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव. ठीक है, अगर आपने भी होप लूज़ कर दी, बट मुझे लगता नहीं आपने लूज़ करी है होप, मुझे लग रहा है सिचुएशन इम्प्रूव होगी, थिंग्स विल टर्न आउट इन योर फेवर. पाइल 2 और उनके पर्सन के लिए एक गाइडेंस और. अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका नो बोला है एंजल्स ने मुझे. ठीक है, नो उसका आंसर है. अगर आपने कोई क्वेश्चन अभी पूछा है तो नो यस. कुछ लोगों के लिए नो है, कुछ लोगों के लिए यस है. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मल्टीपल लोग लिख रहे हैं, रीडिंग जनरल है, तो कुड बी नो कुड बी येस. लुक फॉर साइन. यूनिवर्स आपको साइन देगा. नो और येस देखने का तरीका ये है कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है. जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, हो सकता है 2 क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन का आंसर नो है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर येस है, या हो सकता है कि यूनिवर्स आपको सस्पेंस में छोड़ना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए मे बी भी आंसर हो सकता है. ठीक है, बट यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो लुक फॉर अ साइन. ठीक है, कुछ बेटर कुछ चीज़ें आ रही हैं. ठीक है, हो सकता है वाइस वर्सा एनर्जी भी हो, लाइक जो मैं आपको आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ, हो सकता है वो आपकी एनर्जी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है. तो वो रीडिंग अकॉर्डिंगली देखना, कभी कभी एनर्जीज फ्लिप फ्लॉप हो जाती है. ठीक है, एक गाइडेंस और लेंगे आपके लिए. पाइल 2 उनके पर्सन के लिए गाइडेंस. लेट गो. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको आपके एग्रेशन इश्यूज या शॉर्ट टेम्पर्डनेस है ना, वो चीज़ें आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. ठीक है, अगर आपको अपनी हेल्थ पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, अगर किसी की हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है तो. एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में. ठीक है, दैट्स फॉर गाइडेंस. एंड एक लास्ट गाइडेंस आई वुड टेक फ्रॉम दिस डेक एज वेल. पाइल 2 और उनके पर्सन के लिए गाइडेंस, मेनली आपके लिए गाइडेंस बताएगा. ठीक है, मेनली आपके लिए गाइडेंस बताएगा. पाइल 2 के लिए गाइडेंस. द पर्सन और सिचुएशन यू आर इन इज सिंपली नॉट फॉर यू. तो कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि दिस सिचुएशन इज़ नॉट फॉर यू. इस सिचुएशन को अभी छोड़ देना चाहिए. हो सकता है कि फ्लिप फ्लॉप हुई हो एनर्जी, हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी आपकी हो. तो मुझे गाइडेंस मिल रही है आपके लिए कि अभी सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए, अभी सिचुएशन पे वर्कआउट मत करो. सिस्टर और सिबलिंग कुड बी सिग्निफिकेंट, और हो सकता है आपको गार्लिक ब्रेड या कुछ पसंद हो, किसी के लिए हो सकता है स्पेसिफिक. ठीक है, दिस पर्सन सिचुएशन इज, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस मिल रही है कि अभी कुछ मत करना, कुछ करना नहीं चाहिए अभी आपको सिचुएशन में. कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है अभी थोड़ा शांत हो जाना चाहिए. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी सिचुएशन इज़ नॉट इन योर फेवर, तो छोड़ दो अगर किसी चीज़ को लेकर डाउट है. ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये आ रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो आई एम टेलिंग एज पर वॉट एवर आई एम गेटिंग. ठीक है, दिस पर्सन और सिचुएशन यू आर इन इज सिंपली नॉट फॉर यू. तो यूनिवर्स इज गाइडिंग कि अभी दिस सिचुएशन इज़ नॉट फॉर यू, एंड दिस टाइम अभी नहीं है. एंड दिस अगर आपको किसी सिचुएशन को लेकर डाउट है, मुझे ये भी आ रहा है किसी को सिचुएशन को लेकर डाउट है. कोई सिचुएशन है, ये
ये जनरल एडवाइस है, आपके लिए हो सकती है। किसी सिचुएशन को लेकर डाउट है, मनी रिलेटेड या करियर रिलेटेड, तो वो सिचुएशन आपको गाइडेंस मिल रही है कि दिस सिचुएशन इज़ नॉट फॉर यू। इंट्यूटिवली आपको फील होगा दिस पर्सन यू आर मेंट टू बी और नॉट। हो सकता है दिस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया हो या कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में यूनिवर्स इज गाइडिंग कि दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। किसी के लिए बड़ा स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपकी गलती ना हो, बट दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है आपका, इसने आपको गलत समझा है, बट डेफिनेटली उनका पर्सपेक्टिव का ये मतलब नहीं है कि आप गलत हो, ठीक है। क्योंकि उनको भी मैंने आपको बोला ना मिसगाइड किया गया है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट कि यू आर रॉन्ग, ठीक है। यूनिवर्स इज सेइंग दैट वे। हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि कुछ ना हो सकता हो, यूनिवर्स इज लाइक सेइंग कि थोड़ा टाइम दो सिचुएशन को, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के बिहाफ पे ये भी आ रहा है कि इन दिस पर्सन को, जो भी आपका पर्सन है, इसको बहुत ज़्यादा लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। और एक देखते हैं, द क्वेश्चन इज सिंपली नॉट, इट्स नॉट सिंपली डिजायर बट वॉट यू डिजर्व, काउंट योर ब्लेसिंग, हाउ लकी यू आर, बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपने सारी होप्स लूज़ कर दी है, तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से तो आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाते हो, अंदर से भी आप बहुत पोलाइट हो, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। तो वो क्वेश्चन यूनिवर्स कह रहा है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या आप चाहते हो, जो भी हो रहा है वो आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है पहले तो। और यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो, नेगेटिव मत सोचो बहुत ज़्यादा, आप बहुत नेगेटिव ले रहे हो सिचुएशन, ठीक है। क्यूपिड्स एरो, न्यू लव इज सून गोइंग टू क्रॉस योर वे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्यू लव की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। हो सकता है न्यू पार्टनर, न्यू लव आ रहा हो, ठीक है। हो सकता है कि दिस पर्सन वॉन्ट बी राइट फॉर यू, ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन कुड बी मैनिपुलेटिव कुछ लोगों के केस में। मुझे 50% के केस में ये जो आपका पार्टनर है ये मैनिपुलेटिव लग रहा है, ठीक है। और 50% के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है। एंड अगर नेसेसरी आपने इस पर्सन के लिए कोई मैनिपुलेशन नहीं करी है या कुछ ऐसे नहीं करा है, तो मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है, मैंने आपको पहले बोला था ना कि इस पर्सन को लगता है कि आप इनको स्टॉक कर रहे हो या आप इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनको, आप कुछ लोगों की, कुछ 50% लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एक गाइडेंस हो रही है, यू आर मेंट टू गो हायर, फोकस ऑन योर ग्रोथ, योर लाइफ लेसन्स आर मेंट टू गाइड यू but also others, not only you but also others. Use your communication skills. तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, इट्स बेटर टू लीव ऑल टू डिवाइन फोर्सेज विल सी टू इट, हैव फेथ, एवरीथिंग विल वर्क आउट। तो ये आपकी गाइडेंस है, ठीक है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना, क्योंकि मुझे ये गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने आप पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। इम्प्रूविंग हेल्थ का भी आया था, तो आपकी हेल्थ भी मेरे को लग रहा है सही नहीं है, ठीक है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि दिस सिचुएशन इज़ नॉट फॉर यू, तो छोड़ दो, ठीक है। इंट्यूटिवली आपको पता होगा दिस फॉर, बहुत लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि दिस सिचुएशन इज़ नॉट फॉर यू। कोई नया लव आ रहा है आपकी लाइफ में, न्यू लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। तो अपनी लाइफ को अब पीसफुली जियो, जो भी हुआ है उसको छोड़ दो। या इफ़ यू वांट टू ट्राई, एक बार कम्युनिकेट करके देख लो इस पर्सन से कि सारी चीज़ें सॉर्ट हो सकती है नहीं हो सकती। बट आई डेफिनेटली सी कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी स्टैंड लेना ज़रूरी है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का भी आया था। तो अगर आपको लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आपको क्लियर करना चाहिए। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो सजेशन वैसे लेना, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट करके लेना, ठीक है। मुझे आपकी सिचुएशन नहीं पता है, जनरल रीडिंग है, मुझे 50% के लिए अलग रीडिंग आ रही है, 50% के लिए अलग रीडिंग आ रही है। तो जो रीडिंग आई है वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। So this is for your reading pile 2. Thank you for watching this video. Do subscribe for more such videos. But इतना मैंने टेल लिया तो थोड़ा एक सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही सकते हो, ठीक है। और कमेंट्स में बताना कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, ठीक है। डू कमेंट, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन.